નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું સ્ટડી પેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 5 હિન્દી પ્રકરણ 13 સ્વચ્છતા વિશે જોઈશું। આ જેમ સાહિત્યના અલગ અલગ પ્રકાર હોય છે તેમ આ પાઠનો પ્રકાર છે નિબંધ પ્રકારનો પાઠ છે। તો ચાલો, શબ્દ ઉપરથી તો આપણને એટલી ખબર પડે છે કે આપણે સ્વચ્છતા જાળવવી જોઈએ અને ચિત્ર પરથી આપણે એ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે જો આ વ્યક્તિ જે છે તે બારીમાંથી પોતાની ગેલેરીમાંથી કેળાનું જે છે છાલ ફેંકી રહ્યો છે, તો તે આપણે આવી રીતે રસ્તા પર ફેંકવી જોઈએ નહીં। અહીંયા તમે જોવો છો કે આ બાળક જે છે તે એ છાલને ઉપાડીને કચરાપેટીના ડબ્બામાં નાખી રહ્યો છે। તો આપણે પણ કચરાપેટીનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ। ચાલો હવે આપણે પાઠ વિશે अभ्यास करिए। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। देखो, स्वच्छता और स्वास्थ्य अर्थात जो આપણે ચોખ્ખાઈ રાખીએ અને એની આપણી શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ જ તેમનો સંબંધ જે છે તે ઘનિષ્ઠ છે, બહુ નજીકનો સંબંધ છે। કેમ કે સ્વચ્છતાના અભાવથી ગંદકી ફેલાય છે અને ગંદકી જે છે તે રોગો થવા માટેનું મૂળ કારણ હોય છે। હવે આપણે સ્વચ્છતા સંબંધી અમુક સતર્કતા રાખવી જોઈએ। કેવી સતર્કતા? તો કે આપણે જે કચરો હોય છે તેને કચરાપેટીના ડબ્બામાં નાખવો જોઈએ, જેથી કરીને જગત જે છે તે સ્વચ્છ બને, સુંદર બને અને સાથ સાથ આપણે બધા સ્વસ્થ પણ રહી શકીએ। તો ચાલો હવે પાઠ જોઈએ। ચાલો હવે આપણે પાઠ જોઈએ। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। હવે અહીંયા અજયનો જન્મદિવસ હતો અને તેને મોહન એનો એક મિત્ર છે તેને પોતાના જન્મદિવસ પર बुलाव्यो। આપણને બધાને ખબર છે कि हम सब भी जब हमारा जन्मदिन होता है तो हम हमारे आसपास के रहने वाले दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाते हैं। मोहन ने उसे उपहार देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। देखो ये मोहन है, वो अजय के घर जा रहा है उसका जन्मदिन मनाने के लिए। अब वो है ना एक उपहार, उपहार अर्थात क्या होता है? भेंट, गिफ्ट, जिसको हम गिफ्ट कहते हैं। आपका दोस्त भी अगर आपके बर्थडे पर आएगा तो आपको कुछ गिफ्ट देगा, कुछ भेंट देगा, कुछ उपहार देगा। तो ये जो है एक कहानियों की पुस्तक है, उसे रंगीन कागज में, आप सभी को पता है कि जब हम किसी को भेंट देते हैं तो हम उसको अच्छे से रंगीन कलरफुल कागज में लपेट कर देते हैं। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। देखो ये अजय के घर जा रहा है। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। तो હવે જેવો આ મોહન જે છે તે અજયની શેરીમાં પહોંચે છે કે તરત જ એક કેળાની છાલ એના ઉપર ફેંકવામાં આવે છે। જો આ વ્યક્તિ ફેંકી રહ્યો છે કેળાની છાલ। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। देखो मोहन मन ही मन सोच रहा है कि कोई कैसे सड़क के ऊपर छिलका फेंक सकता है। मतलब આપણે રસ્તા ઉપર આવી રીતે છાલ ફેંકવી જોઈએ નહીં, કોઈનો તેના ઉપર પગ આવે, લપસી પડે, તેને વાગી પડે। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। अब देखो मोहन ने अपने हाथ में छिलका उठा लिया और इधर उधर देखा। क्यों इधर उधर देखा? क्योंकि वो कूड़ादान जो है ढूंढ रहा था। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। जो आ कूड़ादान છે मतलब કચરાપેટીનો ડબ્બો છે, તેને અમુક અંતરે કચરાપેટીનો ડબ્બો દેખાણો। उसने छिलका उसमें डाल दिया। હવે આ જે છે તે છાલ એને કચરાના ડબ્બામાં નાખી દીધી। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। देखो हम भी अक्सर एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं पता है? कि जब भी हम कचरा डालते हैं तो कचरे के डिब्बे में नहीं डालते, कूड़ेदान में नहीं डालते। हम क्या करते हैं, क्लास में भी अगर वर्ग वर्ग में भी हम बैठे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको जस्ट यहाँ हमारी जगह से बैठे के कागज फेंक देंगे जो कि कूड़ेदान में नहीं जाएगा। એટલે એ કાગળ જે છે તે આજુબાજુમાં પડી જાય છે। અહીંયા કચરાપેટીની આજુબાજુમાં પડે તો અહીંયા પણ શું થાય છે? કચરો બહાર ફેલાય તો ગંદકી બહાર ફેલાય છે। જો આપણને કચરાપેટીનો ડબ્બો આપવામાં આવ્યો છે તો આપણે તેનો સદુપયોગ કરીને જે કાંઈ પણ કચરો હોય છે તે આ કચરાપેટીના ડબ્બાની અંદર નાખવાની જરૂર હોય છે। वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी।
જો તમે જોઈ શકો છો હવે આ જે કચરો બહાર આવી રહ્યો છે તેનાથી શું થાય છે કે ત્યાં બધી માખીઓ બધી ભેગી થાય છે અને ગંદકી જે છે તે ચારો ઓર फैलाईली હતી। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी से बदबू आ रही थी। હવે જ્યારે અજય થોડોક વધારે આગળ જાય છે તો મોહનને હવે જો મોહન થોડોક વધારે આગળ જાય છે તો મોહનને બહુ બદબુ આવે છે। બદબુ આવવાનું કારણ શું છે તેને ત્યાં છે ખૂબ જ જોવા જઈએ તો તેને ખૂબ જ ગંધ આવતી હોય છે। તેને આગળ જઈને જોયું તો શું દેખાણું નાલીઓ में कूड़े के कारण नालिया એટલે જે ગટર હોય છે ગટરમાં કચરાના લીધે પાણી ભરાયેલું હતું। કચરો આડો આવી જાય તો પાણી આગળ વહી શકે નહીં અને એ પાણી એક જગ્યાએ એકઠું થયું હતું અને તેમાંથી દુર્ગંધ આવી રહી હતી। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। આ ગંદકીથી આ મતલબ આ દુર્ગંધથી બચવા માટે મોહને શું કર્યું પોતાનો હાથ રૂમાલ બહાર કાઢ્યો। તમારામાંથી પણ ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો હાથ રૂમાલ સાથે લઈને નહીં આવતા હોય। જો આપણે આપણો હાથ રૂમાલ આપણા માટે જ વાપરવાનો હોય છે। આપણું બ્રશ આપણે કોઈને કરવા દઈએ છીએ નથી દેતા ને તો આપણે આપણો હાથ રૂમાલ પણ પોતાના માટે જ ઉપયોગમાં લેવો જોઈએ। શું કામ આપણે બીજાને ના દેવો જોઈએ કેમ કે જો આપણને શરદી ઉધરસ કે છીંક આવે તો આપણે આપણો રૂમાલ આપણા નાક ઉપર રાખીને આપણે તેનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। જો બીજાને ઉપયોગ કરવા દઈશું તો આપણા મોઢામાંથી જે પણ વાયરસ ને જે પણ બેક્ટેરિયા નીકળશે એ બીજાના હાથમાં પણ લાગશે અને આપણો ચેપ તેને પણ લાગી શકે છે। એટલે આપણે જ આપણો હાથ રૂમાલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। હવે ત્યાં અજયના બીજા પણ ઘણા બધા મિત્ર આવેલા હતા। પછી અજયે મોહનની મુલાકાત કોની સાથે કરી તો કે અજયના માતા પિતા સાથે કરાવી। अजय की दादी जो बीमार थी मोहन उनसे भी मिला। હવે અજયને એક દાદી હતા જે બહુ બીમાર હતા મોહને તેની પણ મુલાકાત લીધી। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी। मेज એટલે શું ડાઇનિંગ ટેબલ જે હોય છે જેના પર બધા જમવા બેસતા હોય છે તેના ઉપર ખાવાની ઘણી બધી વસ્તુઓ રાખવામાં આવી હતી। તેના ઉપર વારે વારે માખી આવી જતી હતી। मोहन ने अजय से कहा अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं कराती? હવે જુઓ મોહનને પ્રશ્ન થાય છે એટલે અજયને કહે છે કે અજય તમારી શેરીમાં તમારા મોહલ્લામાં આટલી બધી ગંદકી કેમ છે? શું નગરપાલિકા તેને સાફ નથી કરાવતી? હકીકતમાં આ કામ છે નગરપાલિકાનું હોય છે કચરો સાફ કરવો રેગ્યુલર તેને ઉપાડવો રોજે રોજ નગરપાલિકાના વાહનો ફરતા હોય છે પણ નગરપાલિકાની સાથે સાથે આપણી પણ કઈક જવાબદારી બને છે। अजय की माताजी ने कहा बेटा नगरपालिका की गाड़ी आया करती है जगह जगह कूड़ेदान भी है पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं इसीलिए सफाई नहीं रहती। जो અજયના મમ્મી શું કહે છે કે નગરપાલિકાની ગાડી તો આવે જ છે અલગ અલગ જગ્યાએ તેને કચરાપેટી કૂડેદાન એટલે કચરાપેટી પણ રાખેલી છે पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જે એની અંદર કચરો નાખતા નથી તે શું કરે છે वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं તે કચરાને રસ્તા ઉપર જ તમને ખબર હોય તો ઘણા લોકો બાઇક લઈને જતા હોય છે બાઇક લઈને હાથમાં કચરો ફેંકવા માટેની એક પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં કચરો રાખેલો હોય છે ને દૂરથી જ ફેંકી દે છે। હકીકતમાં આપણે તેને દૂરથી ફેંકવો જોઈએ નહીં આપણે ઊભા રહીને તેને વ્યવસ્થિત રીતે જે પેલી કચરાની ટોપલી છે તેની અંદર નાખવો જોઈએ। આવી રીતે જો રસ્તા પર ફેંકી દઈશું એટલે સફાઈ રહેશે નહીં। હવે આગળ જોઈએ। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा तुम ठीक कहते हो मोहन गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का प्रारंभ करे। હવે બીજે દિવસે જ્યારે અજય શાળાએ જાય છે ત્યારે અજય શું કરે છે પોતાના જે શિક્ષક છે અધ્યાપક છે તેને આ વાત કહે છે। હવે અધ્યાપક શું જવાબ આપે છે અધ્યાપક એવું કહે છે કે ગંદકી જે છે ગંદકી જે છે તે લગભગ બધા રોગોનું મૂળ હોય છે। નગરપાલિકાનું કામ તો નગરને સ્વચ્છ રાખવાનું તો છે જ તે
પણ આપણે પણ એ લોકોની મદદ કરવી જોઈએ. હવે જે મોહનના જે અધ્યાપક છે તે કહે છે કે ચાલો આપણે એક દિવસ અજયની શેરીમાં, અજયના મોહલ્લામાં જઈશું અને આપણે બધા જ સફાઈનું શરૂઆત કરીશું. તમે જોઈ શકો છો આ બધા શેરીમાં આવી ગયા છે અને સફાઈ કરી રહ્યા છે. જો આ બધા વિદ્યાર્થીઓ છે, તમે પણ તમારી શાળામાં આ બધી સાફ સફાઈ કરતા જ હશો અને આપણી આસપાસની જગ્યાઓને સાફ રાખવી એ આપણી જવાબદારી છે. હવે આગળ જોઈએ. रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए. सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे. હવે જો રવિવારનો દિવસ હતો, બધા અજયની શેરીમાં ગયા અને બધાના હાથમાં શું હતું? એક ટોકરી અને એક ઝાડુ. ઝાડુ આપણે જેને સાવરણો કહીએ છીએ ને, તે સાવરણો હતો. सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया. હવે એ લોકોએ રસ્તા પર પણ સાવરણો માર્યો, મતલબ સાફ સફાઈ કરી, ત્યાંનો બધો કચરો ભેગો કરી દીધો અને નાલી એટલે જે ગટર હતી, ગટરની પણ સફાઈ કરી, જેથી કરીને પાણી વ્યવસ્થિત રીતે ગટરમાં વહી જાય, ત્યાં ભેગું થાય નહીં. उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली. आपको पता है डीडीटी करके एक दवाई आती है, सफेद कलर का पाउडर होता है, वो मक्खी और मच्छर को मार देता है. जहां पर भी गंदगी होती है वहां नगर पालिका इनको जो है कहते हैं कि स्प्रेड करती है, इनका छटकाव करती है, तो इनको वहां बिखेरती है, तो उससे क्या है, मक्खी और मच्छर मर जाते हैं. કૂડેદાન પર ઢક્કન રખા. જો સૌથી મોટી વસ્તુ, આપણા ઘરે પણ કચરા પેટી હોય છે પણ ખુલ્લી હોય છે. જો કચરા પેટીને ક્યારેય ખુલ્લી નહીં રાખવાની. કચરા પેટીની ઉપર ઢાંકણું હોવું ફરજિયાત છે, જેથી કરીને તેની અંદર માખીઓ બેસે નહીં. मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे. હવે જો જે શેરીમાં જેટલા લોકો રહેતા હતા તે બધા બહાર આવી ગયા. बच्चों में बहुत उत्साह था. देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया. જો બાળકો, તમારા જેવા બાળકો ને ખૂબ જ ઉત્સાહી હોય છે, તે અધ્યાપકની બધી વાતો માનતા હોય છે અને જોત જોતામાં જ એ લોકોએ આખો મોહલ્લો સ્વચ્છ કરી નાખ્યો. अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, वे घर के आसपास सफाई रखे क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं. હવે જે શિક્ષક આવ્યા હતા તેમને ત્યાંના લોકોને પણ સમજાવ્યા. શું સમજાવ્યા? કે તમારે કચરો જે છે તે કચરા પેટીના ડબ્બામાં અર્થાત કૂડા કૂડેદાનમાં ही डाले અને પોતાના ઘરની આસપાસ સાફ સફાઈ રાખવી જોઈએ, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं. અર્થાત ગંદકીના લીધે જ રોગનો ફેલાવો થતો હોય છે. उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करें. હવે અધ્યાપક અર્થાત શિક્ષક શું કહે છે કે મારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અઠવાડિયાની અંદર એકવાર અહીંયા આવશે અને તમારી શેરીને વ્યવસ્થિત સાફ કરી દેશે, પણ આ કામમાં તમારે પણ આ બાળકોની સહાયતા કરવી જોઈએ. एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे. જો ત્યાં અમુક જે લોકો હોય છે, બુદ્ધિશાળી હોય છે, ત્યાં શેરીમાં પણ રહેતા હોય છે, એ લોકોએ સામેથી આવીને શું કીધું ખબર છે કે ના ના, હવે આ બાળકોને ના મોકલતા, હવે એમની કોઈ જરૂર છે નહીં, કારણ કે હવે અમે લોકો જ અમારા મોહલ્લાને સ્વચ્છ રાખીશું અને તમે જ્યારે પણ અહીંયાથી નીકળશો તો તમને દેખાશે કે અમારી શેરી સાફ છે. હવે શબ્દોના અર્થ જોઈએ. શબ્દાર્થ. સ્વચ્છતા નો અર્થ થાય છે સફાઈ, નિર્મલતા. छिलका, ફળ આદિ કા આવરણ, જેને આપણે છાલ કહીએ છીએ, ફળનું જે આવરણ હોય છે તેને છાલ કહીએ છીએ, એટલે છિલકા. બદબુ, દુર્ગંધ, બુરી ગંધ. उत्साह, उमंग, जोश. प्रथम, पहला. कूड़ादान, कचरा डालने का पात्र એટલે કચરા પેટી. दोष, अवगुण अथवा तो अपराध. उपहार, भेंट, नजराने की वस्तु या गिफ्ट. सप्ताह, 7 दिनों का समूह, આપણે જે અઠવાડિયું જેને કહીએ છીએ ને, 7 દિવસનો જે સમૂહ હોય તેને શું કહેવાય? સપ્તાહ કહેવાય છે. મોહલ્લા, ગલી, શેરી. શેરી શબ્દ ગુજરાતી છે. હવે આપણે અભ્યાસ જોઈએ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए.
एक, आप अपनी पाठशाला में किन किन चीजों की सफाई करते हैं? देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये जो है आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। देखिए, हम अपनी पाठशाला में कमरे यानी जहां पर हम लोग कक्षा लगती है, जहां पर बैठते हैं, वो कार्यालय, कार्यालय यानी जहां पर हमारे प्रिंसिपल सर बैठते हैं, कुर्सी, मेज, श्याम फलक मतलब जो बोर्ड होता है जिसके ऊपर अध्यापक लिखते हैं उसको। शैक्षिक सामग्री मतलब आपको पढ़ाने के लिए टीचर अगर कोई चीजें यूज करता है तो उसको, तथा मैदान, बगीचा आदि की सफाई करते हैं। જો મને તો હજી યાદ છે કે જયારે અમે લોકો નાના હતા એ સમયે શું હતું કે લીમડાનું ઝાડ અમારી શાળામાં હતું, એ ઝાડમાંથી અમે ડાળીઓ તોડીને શિક્ષક આવે તો અમે 11 વાગ્યાની અમારી શાળા હતી તો અમે લોકો 10 વાગે ત્યાં પહોંચી જતા અને લીમડાની ડાળીઓ તોડીને જે આખું ગ્રાઉન્ડ હોય છે તે ગ્રાઉન્ડને સાફ કરતા હતા। તમારે પણ ગામડાઓની શાળામાં આ વસ્તુ ખૂબ જ સુંદર હોય છે કેમ કે વિદ્યાર્થીઓ જ એની સાફ સફાઈ करता હોય છે। बे, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? देखते हैं। गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार आदि बीमारियां होती है। तीन, સફાઈ કે लिए किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है? साफ सफाई માટે આપણે કઈ કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો ચલો જોઈએ। सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता। झाड़ू એટલે આપણે જેને સાવરણો કહીએ છીએ, તસલે એટલે તગારા જેમાં આપણે કચરો ભરી શકીએ છીએ, ફિનાઇલ એટલે એક એવું પ્રવાહી આવે છે કે જેનાથી જે તમે કહેવાય કે જીવાણુઓ અને નાના નાના વાયરસ હોય, બેક્ટેરિયા હોય તે મરી જાય છે અને બ્રશનો ઉપયોગ કરીએ છીએ જેથી કરીને આપણે વ્યવસ્થિત લાદીને ઘસી શકીએ, તો આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। 4, पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? चलो शाળામાં તો આપણે કરીએ જ છીએ, એ સિવાય अन्य કઈ કઈ જગ્યાઓ છે? पाठशाला के अलावा मैं अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ। कभी कभी समूह में हम गांव की भी सफाई करते हैं। જો આપણે છે ને શું કરીએ છીએ કે શાળા અલાવા આપણે ઘરમાં પણ મદદ કરતા હોઈએ છીએ અને ઘણીવાર તો આપણે સમૂહમાં અર્થાત મહિનામાં એકાદ વખત ગામની સફાઈ મતલબ ગામની સફાઈ માટે પણ બધા ભેગા થતા હોય છે તો એ પણ કરતા હોઈએ છીએ। હવે જોઈએ આગળ સ્વાધ્યાય 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो चलो देखते हैं। इसका उत्तर है, मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा, भिनक रही मक्खियां और चारों ओर फैली गंदगी देखी। देखो अजय ने क्या क्या देखा, मोहन ने क्या क्या देखा अजय के मोहल्ले में, तो कि कूड़ेदान के બહાર મતલબ કચરા પેટીના ડબ્બાની બહાર જે કચરો ફેલાયેલો હતો તે જોયો। બીજું, ભીનક રહી મક્ખિયા મતલબ જે બણબણાતી માખીઓ હતી તે પણ જોઈ અને બધી બાજુ ગંદકી ફેલાયેલી હતી। આ વસ્તુ મોહને અજયના મોહલ્લામાં જોઈ। 2, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसीलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। तो લોકો શું કરતા હતા, કૂડેદાન એટલે કચરા પેટીનો ઉપયોગ નતા કરતા, શા માટે? કચરો નાખવા માટે। શું કરતા હતા, રોડ પર જ બધો કચરો નાખી દેતા હતા અને સફાઈની કોઈ चिंता करता હતા નહીં, એટલે મોહલ્લામાં શેરીમાં ગંદકી ફેલાયેલી હતી। હવે જોઈએ પ્રશ્ન 3, અધ્યાપક બચ્ચો को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? હવે જે શિક્ષક હતા તે અજયના મોહલ્લામાં બધા બાળકોને શા માટે લઈ ગયા? अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहां गंदगी फैली हुई थी, તે ગંદકીને સાફ કરવા માટે લઈ ગયા હતા। उसे बच्चों के द्वारा वह साफ करवाना चाहते थे, अर्थात એ અધ્યાપક હતા તેમને આ બાળકોની મદદથી તે ગંદકીને दूर करवी હતી। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं અને અધ્યાપકની એવી પણ ઈચ્છા હતી કે ત્યાં જે લોકો રહે છે તેમને સમજાવવાની ઈચ્છા હતી કે તમારે કચરો જે છે તે કચરા પેટીના ડબ્બામાં જ નાખવો જોઈએ, કારણ કે જો ગંદકી વધશે તો તેનાથી રોગ પણ ફેલાય છે। 4, हम नगरपालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की
सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। जो नगर पालिकाની મદદ આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ તો કે જે કચરો જે હોય છે તે કચરા પેટીના ડબ્બામાં નાખે એ ડબ્બો તો નગરપાલિકા વાળા લઈ જશે અને આપણા ઘરની આસપાસ જે છે આપણી શેરીમાં છે આપણે તેની સફાઈ જાતે જ રાખવી જોઈએ। આવી રીતે આપણે નગરપાલિકાની મદદ કરી શકીએ છીએ। 5 हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? આપણે શા માટે આપણું ઘર અને શેરીને સાફ રાખવી જોઈએ? हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। जो આપણે બીમાર ન થવું જોઈએ ન થવું હોઈએ તો આપણે સાફ સફાઈ રાખવી પડે અને સાફ સફાઈ રાખીશું તો બીમારી ફેલાશે નહીં। હવે આગળ જોઈએ। 2 नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ विशेषण दिए हैं जैसे अच्छा, कोमल, लाल, सफेद। एक यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है जैसे सुंदर एक विशेषण है तो उसको वाक्य में लिखा है। कैसे लिखा है? बाग में सुंदर फूल खिले है। कैसे फूल खिले हैं? तो सुंदर फूल खिले हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है फूलों की विशेषता दिखा रहा है, इसीलिए इसको विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता दिखा रहा है? ये जो सुंदर शब्द हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये रहा सुंदर शब्द, वो किसकी विशेषता दिखा रहा है? तो फूलों की विशेषता दिखा रहा है। चलो अच्छा शब्द का यूज करते हैं। अच्छा, तनुष अच्छा लड़का है। यहाँ पर देखो ये तनुष जो है वो अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो अच्छा जो है उसकी विशेषता हो जाती है किसकी? तनुष की विशेषता है। अब आगे देखते हैं। कोमल बगीचे, कोमल बगीचे में कोमल घास है। कैसी घास है? मुलायम। तो ये कोमल जो है वो क्या हो गया? विशेषता हो जाती है। चलो आगे देखते हैं। लाल, मनीषा ने लाल साड़ी पहनी है। देखो यहाँ पर एक लड़की है जिसने कौन से रंग की साड़ी पहनी है? लाल रंग की साड़ी पहनी है। तो लाल जो है वो साड़ी की विशेषता बताता है। सफेद, मैदान में सफेद, यहाँ जो है ये नहीं आएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे गाय, लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं सफेद गाय, और ये चारती नहीं आएगा, ये हो जाएगा चरती। क्या हो जाएगा? चरती। तो ये हटा देंगे हम, गाय चरती है। कौन से रंग की गाय मैदान में चरती है? तो सफेद रंग की गाय चरती है। आगे देखते हैं, पांचवा हो गया है। अब हम देखते हैं तीसरा अ, अंगों को काम से मिलाइए। देखो यहाँ पर अलग अलग अंग दिए गए हैं हमारे शरीर के और हमें क्या करना है? उसको अब मिलाना है। किसके साथ मिलाना है? तो उसका क्या काम है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कान का क्या काम है। हम सबको पता है कि कान का काम क्या होता है। कान से हम गाना सुन सकते हैं। आंखों से, आंख का क्या काम होता है? आंखों से हम फिल्म देखते हैं। नाक का काम, तो नाक से हम फूल सूंघते हैं या खुशबू ले सकते हैं। पैर से, पैरों का क्या काम होता है? तो पैर से चलते हैं। हाथों से, हाथों का क्या काम होता है? बल्ला घुमाते हैं। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा बल्ला जो है वो हम हाथों से घुमाते हैं। दांतों से, दांतों से क्या करते हैं हम? तो देखते हैं दांतों से हम खाना चबाते हैं। मुंह से हम गाना गा सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है इसको मिलाना है। अब हम इसके ऊपर से वाक्य बनाएंगे। सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। देखो क्रिया को हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है। रेखांकित मतलब उसकी नीचे रेखा खींचनी है। तो चलो देखते हैं। आंख से फिल्म देखते हैं, तो देखते हैं जो वो क्या हो गई? हमारी क्रिया हो जाती है। तीसरा, नाक से फूल सूंघते हैं, तो सूंघना जो है वो क्या है? क्रिया है। पैर से चलते हैं, चलना क्या हो जाती है? क्रिया है। 5 हाथों से बल्ला घुमाते हैं, जो घुमाना है वो क्या हो गई है? वो क्रिया है। दांतों से खाना चबाते हैं, हम मतलब जो चबाना होता है, जब खाना खाने के बाद मुंह में खाने को चबाते हैं तो वो भी एक क्रिया है। अब आगे देखते हैं। 7 मुंह से गाना गाते हैं, अर्थात जो गाना है उसको गाया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। अब आगे देखते हैं। नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन लिखिए। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिवाली का मौसम चल रहा है क्योंकि दिए जले हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पटाखे रखे हुए हैं, बहुत सारे बॉम्ब रखे हुए हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं कि घर को सजाने के लिए कुछ वस्तुओं का उपयोग भी किया गया है। यहाँ एक लड़का और लड़की जो है मिठाई का आनंद ले रहे हैं और यहाँ पर जो है उनकी माता खिड़की से झांक रही है या देख रही है। ये देखो ये पटाखे जला रहे हैं, अपने कान को क्या किया है इन्होंने दबा के रखा है ताकि पटाखों की आवाज से कान को नुकसान ना हो। चलो देखते हैं अब नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन। यह दीपावली का दृश्य है, हमने देखा कि हाँ ये दीपावली का दृश्य है। दीपावली, अब यहाँ पर थोड़ा जो है हम सुधार करेंगे, यहाँ दीपावली इसको लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे। देखो अब इसको हमें जो है थोड़ा सुधार करेंगे, यहाँ करेंगे दीपा दीपावली आश्विन महीने के अमावस अमावस आएगा, अमावस को मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्योहार है, अर्थात दीपावलीનું ચિત્ર છે અને આ આસો મહિનાને અમાસના દિવસે મનાવવામાં આવે છે અને દીપાવલી જે છે તે દીવા મતલબ દીપો કા અર્થાત દીવા આપણે પ્રગટાવીએ છીએ અને દીવાઓનો ત્યોહાર તરીકે ઉજવીએ છીએ। घर में दीपकों घर को दीपकों से सजाया गया है। हमने देखा आगे चित्र में कि घर को दीपक से सजाया गया है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है, उन्होंने देखा कि एक लड़का जो है पटाखे लेकर बैठा है। एक लड़का पटाखों के लिए जा रहा है। હવે જો બીજું જે બાળક છે જે પટાખો માટે પટાખા લઈને જઈ રહ્યું છે। दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा था इधर दोनों भाई बहन क्या कर रहे थे, मिठाई खा रहे हैं। माँ खिड़की से झांक रही है, मतलब माँ देख रही है कि बच्चे सही से तो खेल रहे हैं ना, कहीं लड़ नहीं रहे ना, तो माँ खिड़की से झांक कर देख रही है। चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। देखो त्योहार है तो त्योहार में हम सब खुश ही रहते हैं, तो सारे लोग जो है चित्र में खुश दिख रहे हैं। अब आगे देखते हैं। 5 निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। देखिए आपको इसको पहले तो अपने क्लास में जो है आपके वर्ग में इसकी चर्चा करना है मेरे गांव के बारे में, फिर आपको लिखना है। तो चलो मैंने लिखा है यहाँ पर मेरा गांव। मेरे गांव का नाम धर्मपुर है। मेरा गांव छोटा है। हमारे गांव में करीब 700 लोग रहते हैं। मेरा गांव मेरे गांव में विविध जाति धर्म के और विभिन्न व्यवसाय वाले लोग रहते हैं। वे सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है, एक पाठशाला और अस्पताल है। पाठशाला के पास ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत गांव की सुविधा का ध्यान रखती है। मेरे गांव में एक मंदिर है, वहां रोज सुबह शाम भगवान की पूजा आरती होती है। मेरा गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। देखो बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसको कैसे पढ़ेंगे, प्रकृति पढ़ेंगे। हम इसको गुजराती में प्रकृति कहते हैं लेकिन हिंदी में हम इसको प्रकृति कहेंगे। मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है। इस तरह से हमें हमारे गांव के बारे में लिखना है। हो सकता है आप अलग शब्दों का चयन करें, બીજા તમારી ઈચ્છા મુજબ તમે શબ્દોની પસંદગી કરીને તમારા ગામ વિશે તમે લખી શકો છો। હવે જોઈએ अब हम देखते हैं मेरी दिनचर्या। अब दिनचर्या का अर्थ क्या होता है कि दिन के दौरान हम क्या क्या करते हैं। आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला वाक्य, मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। दातुन कुल्लाकर मैं अपने मित्र के साथ खुली हवा में टहलने जाता हूँ। घर वापस आने के बाद मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ और पढ़ने बैठता हूँ। देखो आप सभी भी आपकी जो दिनचर्या है अर्थात દિવસ દરમિયાન તમે જે જે પણ કાર્ય કરો છો તે બધાને દિનચર્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તો તેને તમે અહીંયા લખી શકો છો। આમાં શું લખેલું છે કે રોજ સુબહ જલ્દી ઉઠી જાય છે, પછી દાંતણ કુલ્લા મતલબ દાંતણ અને કોગળા કરીને મિત્ર સાથે આંટો મારવા જાય છે અને પછી પાછો આવીને નહાઈ ધોઈને તૈયાર થઈને વાંચવા બેસી જાય છે। તમારામાંથી ઘણા વિદ્યાર્થીઓ શિયાળા દરમિયાન નહાતા નહીં હોય, પણ નહીં, જો આપણે રોજે સવારે નાહી ધોઈને ફ્રેશ થઈ જઈશું તો વાંચવાની અને ભણવાની ખૂબ મજા આવે છે। आगे देखते, 10 बजते ही माँ भोजन के लिए बुलाती है। भोजन करके मैं पाठशाला जाता हूँ। मैं रोज ठीक समय पर पाठशाला पहुंच जाता हूँ।
मैं पाठशाला में ध्यान लगाकर पढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि वो क्या क्या कर रहा है कि 10 बजे उसकी माँ जो है उसको भोजन यानी खाने के लिए बुलाती है। तो अब ये खाना खाकर पाठशाला यानी स्कूल जाता है और पाठशाला पर सही समय पर पहुंच जाता है। हमें भी हमारे स्कूल में सही समय पर पहुंच जाना चाहिए और वहां पर ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए। अब आगे देखते हैं। शाम को 5 बजे पाठशाला की छुट्टी होती है। घर आने पर जलपान करके मैं मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ। सूरज डूबने से पहले मैं घर लौट आता हूँ, फिर भोजन करता हूँ। देखो शाम को 5 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, फिर हमें घर आकर जलपान यानी हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाना चाहिए और उसके बाद जो है आप अपने मित्र के साथ खेलने के लिए जा सकते हैं। फिर क्या होता है, जब तक सूरज डूबता है उससे पहले पहले हम खेल कर घर पर वापस भी आ जाते हैं और खाना खाते हैं। अब आगे देखते हैं। भोजन के बाद मैं 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। मैं कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता हूँ। फिर मैं दूध का गिलास पीकर सोने जाता हूँ। सोने से पूर्व मैं परमात्मा का स्मरण करता हूँ। अब देखो खाना खाने के बाद क्या करता है, ये 10 बजे तक पढ़ाई करता है और बाद में दूरदर्शन, देखो आप भी घर पर कुछ सीरियल्स वगैरह देखते होंगे शाम के टाइम, रामायण महाभारत या और भी जो है आप जो है कार्टून वगैरह भी हो सकते हो आप देख रहे हो। फिर बाद में क्या कर रहा है, बाद में सोने से पहले ये दूध का गिलास पीता है और सोने से पहले ये परमात्मा यानी भगवान का स्मरण करता है और फिर सो जाता है। आपको भी इसी तरह लिखना है। अब आगे देखते हैं। बनाइए, लगाइए। अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्टर बनाइए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। अब देखो ये आपको खुद ही करना है, अपने आप करना है। क्या क्या करना है आपको, क्या करना है, पहले तो एक चार्ट पेपर लेना है। एक चार्ट पेपर पर एक अच्छा सा चित्र बनाना है और वो चित्र किसके लिए होना चाहिए, स्वच्छता दिखा रहा है वैसा चित्र होना चाहिए, ताकि लोग उस चित्र को देखकर जो है जागरूक बनने चाहिए। और हमें क्या करना है, बाद में उस पोस्टर में चित्र बनाने के बाद उसको रंग भरकर सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थान क्या होता है, जैसे गांव का चौराहा होता है, कोई चौक होता है जहां ज्यादातर मंदिर होता है, कोई बगीचा होता है, वहां तालाब के किनारे कोई बैंक है, ये सारे जो कहते हैं कि हम लोग पब्लिक प्लेसेस है जहां पर लोगों का आवन जावन ज्यादा रहता है, वहां पर हमें उसको लगाना है। तो ये जो है आपको अपने आप ही करना है। चलो अब आगे देखते हैं। 7, पता कीजिए और लिखिए स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलो पहले तो देखते हैं स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हर रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। देखिए आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो लेट तक यानी बहुत देर तक जो है अपने बेड को छोड़ते नहीं है और अपने जो है बिछौने पर सोते रहते हैं, नहीं, लेकिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे। दूसरा, नियमित दातून ब्रश करना चाहिए। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है ऐसे हो जो सुबह दातून करके ना आते हो, तो हमें सुबह उठकर दातून या ब्रश करना जरूरी है, क्योंकि पूरी रात हमारा मुंह जो है वो बंद रहता है। तो हमें सुबह क्या करना है, उसको ब्रश करके जो कीटाणु होते हैं उनको साफ करने होते हैं। तीसरा देखते हैं, शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। शौच क्रिया यानी जब हम बाथरूम जाके आते हैं, है ना, लैट्रिन जाकर आते हैं, यानी उसको शौच क्रिया कहते हैं। तो उसके बाद हमें हमारे हाथ जो है साबुन से धोने चाहिए। नियमित स्नान करके शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। नियमित यानी हर रोज स्नान करना चाहिए। स्नान करने से हमारा शरीर जो है वो स्वच्छ रहता है। खाने से पहले और खाने के बाद हमेशा हाथ धोने चाहिए। लोग हमेशा खाने के बाद हाथ धोते हैं, नहीं, लेकिन हमें खाने से पहले भी धोने हैं और खाने के बाद भी धोने हैं। क्यों खाने से पहले, क्योंकि अगर हमारे हाथों में कोई गंदगी होगी तो उसको हम हाथ धोएंगे तो वो साफ हो जाएगी, और खाने के बाद तो हम हमेशा हाथ धोते ही हैं। उचित जगह पर कूड़ादान रखना चाहिए। देखो स्वस्थ रहने के लिए क्या होता है कि कोई इधर उधर लोग कचरा न फेंके, कूड़ा न फेंके, उसके लिए हमें क्या करना है, उचित जगह એટલે યોગ્ય જગ્યાએ કચરા પેટીનો ડબ્બો આપણે રાખવો જોઈએ, જેથી કરીને બધા તેનો ઉપયોગ કરે અને કચરો તેની અંદર નાખે। હવે આગળ જોઈએ।
कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अगर हम વેફર્સ કે જો રેપર્સ વગેરે હોતે પ્લાસ્ટિકની કોથળીને આ જે તે વસ્તુ આપણી પાસે હોય છે તેને અહીંયા ત્યાં નહીં નાખવાની, આપણે શું કરવાનું તે કચરાને કચરાપેટીના ડબ્બામાં જ નાખવો જોઈએ, જેથી કરીને ગંદકી ફેલાય नहीं। હવે આગળ જોઈએ, हमें अपना मोहल्ला अपना गांव साफ रखना चाहिए। देखो अगर हर एक घर वाला, हर एक घर में रहता हुआ परिवार अगर अपना आंगन साफ कर देता है तो सब लोग अगर अपना आंगन साफ कर देंगे तो गांव तो अपने आप ही साफ हो जाएगा, है ना। જો આપણે આપણી ઘરનું જે આંગણું હોય છે તેને આપણે સાફ રાખીશું તો ગામ બધા પોતપોતાના આંગણ આવી રીતે સાફ કરશે તો ગામ તો એની મેળે જ સાફ થઈ જશે। તો આપણે આપણો મોહલ્લો અથવા ગામની સાફ સફાઈ રાખવી જોઈએ। હવે જોઈએ 2, स्वस्थ रहने के लिए हमें यह नहीं करना चाहिए। चलो सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान के बहार नहीं फेंकना चाहिए, अर्थात कचरो जे छे ते कचरापेटीनी बहार नाखवो जोईए नहीं। बीजू, दातुन ब्रश या स्नान में अनियमित नहीं रहना चाहिए। હવે જો દાંતણ ઘણા લોકો શું કરે એક એક દિવસ મૂકીને દાંતણ કરતા હોય છે, એક એક દિવસ મૂકીને અથવા 2 દિવસ મૂકીને શિયાળામાં નહાતા હોય છે, તો ના, તમારે દાંતણ કરવામાં, બ્રશ કરવામાં અને નહાવામાં નિયમિત રૂપે આ વસ્તુ કરવી જોઈએ। 3 નંબર, मैदान में इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। જો આપણે ઘણી વખત રમતા હોઈએ છીએ ત્યારે કચરો પણ ફેલાવતા હોઈએ છીએ ને અહીંયા ત્યાં થૂકતા પણ હોઈએ છીએ। ઘણી વખત આપણે બીમાર હોઈએ તો આપણા કફ જે છે તે આપણે ગમે ત્યાં થૂકી દઈશું તો તેનાથી માખીઓ થશે ને તે માખીઓ બીજાને બીમાર કરશે, તો જ્યાં ત્યાં થૂકવું જોઈએ નહીં। ચોથા, खुले में पेशाब या शौच नहीं करना चाहिए। જો હવે આપણા બધાના ઘરમાં લગભગ સંડાસની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે, બાથરૂમની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે, તો આપણે ખુલ્લા મેદાનમાં પેશાબ યા શૌચ કરવા માટે જવું જોઈએ નહીં। આપણે આપણા ઘરના લેટ્રિનનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, શાળામાં શાળાના લેટ્રિનનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ। हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। देखो हाथ धोए बिना कभी खाना मत खाए, खाना खाने के बाद तो हम हाथ धोएंगे लेकिन हाथ धोए बिना खाना हमें खाना चाहिए नहीं, यानी खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, आशा राखું છું કે આ વિડિયો તમને મદદરૂપ થશે। તમે જો વિડિયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો જરૂરથી તમારા મિત્રો સાથે આને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। ધન્યવાદ।